So hello students, now we will continue this 3.4 exercise, pair of linear equation in two variable chapter. We were doing in the last video, that is 3.4 exercise. Equation based question we have done. Now the word problem we are going to start. Okay, so let's start the first question of first part of the second question. That is written: form a pair of linear equation in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. If they exist, word is also written there. That means you have to find whether the equation which will be formed having a unique solution or not. So that how we can find with the same algebraic method we have discussed in the beginning. That is a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. With that we can determine this. So first of all we have to form the equation with the given condition. So what first condition is given there? Question is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. The numerator denominator condition is given there, so we have to assume first numerator and denominator as a variable. So we assume first this type of one question we have done in the previous video also, in previous exercise. Let the numerator be x and denominator be y. X or y denominator be x, numerator denominator we assume. Then what will be the fraction? Fraction become x upon y, numerator upon denominator. Now what first condition is given there? If we add 1 to the numerator, in numerator if we add 1 to x plus 1 and subtract 1 from the denominator, from denominator means y minus 1. Then what? A fraction reduces to 1. What condition is given there? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Means if this completely fraction will reduces to 1, means whatever it is there, it will reduce to 1. That become 1 basically. Okay, it will be there. Now 1 can be written 1 upon 1, we will do the cross multiply. So the equation will be there, x plus 1 equal to y minus 1. If we will transfer here, so x minus y equal to what will come? Minus 2. Right? Check the result. Now the second condition is there. It become 1 upon 2. What it become? It means the fraction. Fraction become 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. Numerator में nothing we are doing. Question is saying denominator में add 1 कर दे. If we add 1, only add 1 to the denominator, then it become 1 upon 2. Again cross multiply. That is 2x equal to y plus 1. So what become here? 2x minus y equal to 1. It becomes the second equation. Now when first and second equation is there, so which method we will use? Here elimination. We were doing the elimination one. We will use elimination method and then we will find the value of x and y. So let's start the elimination method with these two equations. First equation is x minus y equal to minus 2. Second equation 2x minus y equal to 1. This equation is given there. So now by elimination method, we have discussed in elimination method like any one variable we can cancel out of x and y. For cancelling, two conditions are there. First, like terms, it should be a like term before cancelling, and then the sign should be different. Okay. So here we'll see this y and y is almost same, but the sign is different. So what we'll do, we'll multiply here minus 1 in the second equation. So what become basically this? X minus y equal to minus 2 as it is, because nothing we are doing in this equation. But this become minus 2x plus y. Sign will change because of minus 1. It become minus 2x. It become plus y equal to minus 1. Minus 1 multiplied in this whole equation. In this whole equation we are multiplying minus 1. Why? Because we want to make different sign on this y for cancelling. Now what left here? Minus x equal to minus 3. X minus cancel, so x equal to what will come? That is x equal to 3. Now x equal to 3, out of this first or second equation, anywhere we can put. Like in first equation, if we will put in place of x, 3 minus y equal to minus 2. So minus y equal to minus 2 minus 3, that means minus 5. Minus minus again cancel.
So y equal to finally 5. So now x or y we have, means numerator denominator we have. That means what? Numerator we get 3 and then denominator we get 5. So what becomes the fraction finally? Fraction becomes 3 upon 5. 3 upon 5 is the fraction. Check कर लीजिए. Now we can check also with the first condition. First condition says that if we add 1 in the numerator, तो numerator में हम first 1 add करते हैं. 3 plus 1 is what? 4. 4 हुआ. Denominator में 1 minus कर देना है. तो 5 minus 1 is 4. 4 और 4 cancel, what become 1? बोल रहा था 1 आ जाएगा. True है. Now next condition की numerator में कुछ भी नहीं किया. Okay, कुछ नहीं कर रहे. That means numerator we will keep as 3 only. और डिनोमिनेटर में प्लस 1 कर दिया, मींस 5 plus 1 6. सो सी इट बिकम व्हाट? 1/2. वही उसने कहा था, इट बिकम 1/2. तो हम चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को जो जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में उसमें पुट करके. ये हर क्वेश्चन में हमेशा ही करना है और कर भी लेना चाहिए, राइट? सो विद दैट एट द सेम टाइम आफ्टर द गेटिंग द आंसर वी कैन वेरीफाई आवर आंसर कि वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग. ओके, सो अंडरस्टूड. जस्ट नोट डाउन दिस वन, देन वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, then noted. Now let's start for the next second question. Second question. What second question says? Again we have to frame the equation and then we will solve. तो बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में 5 years ago. अभी देखो एज का क्वेश्चन आया, तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एज का क्वेश्चन आता है तो हमें प्रेजेंट एज एज्यूम करना है. जो भी पर्सन्स दिए, हालांकि क्वेश्चन बोलेगा कभी बिफोर के लिए, कभी आफ्टर दिस मेनी इयर्स, लेकिन हमको हमेशा जो एज्यूम करना है वो प्रेजेंट एज लेना है, राइट? तो अभी देयर आर 2 पर्सन्स. क्या बोल रहा है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. So Nuri or Sonu, 2 persons are there. So we'll assume here, let the present age of Nuri be X years, and then present age of Sonu Y years. Both present ages we have now. What question is saying now? Okay. दिस इज फॉर प्रेजेंट एज. अभी क्वेश्चन ने बोला 5 years ago, तो 5 years ago. 5 years ago मीन्स 5 साल पहले. अब 5 साल पहले ऑब्वियसली इनकी एज तो कम रही होगी. कितनी रही होगी? तो नूरी वॉज डेफिनेटली x minus 5 और दिस बाय मीन्स सोनू आल्सो y minus 5 years कम करना पड़ेगा. ओके, कंडीशन वॉज नॉट 5 years ago माने इन दीज टू. Nuri was thrice. This Nuri, she is thrice of Sonu. So if she is thrice, here 3 times. Thrice means 3 times. If it is here 3 times, then for balancing here we have to multiply 3. तभी ना balance होगा. ये 3 times. तो मैंने यहाँ 3 multiply किया and it become equal. करो क्या? Then balance. Balance. Now we can frame the equation x minus 5. Open the bracket, 3y minus 15. So x minus 3y equal to 5 minus 15, that is minus 10. So what become the first equation? X minus 3y equal to minus 10. It's the first equation. देखिए चेक करिए, ठीक है? Now second condition. What second condition is there? Second condition 10 years later. अब उसने क्या बोला? Second condition में बोल रहा है 10 years later means in future. Okay, तो फ्यूचर में ऑब्वियसली एज बढ़ेगी. अभी प्रेजेंट x है तो आफ्टर 10 years x plus 10, और अभी y है तो आफ्टर 10 years ऑब्वियसली y plus 10. तब क्या रिलेशन? तब रिलेशन बोला 10 years later Nuri will be, this Nuri will be twice as old as Sonu. So Nuri is twice. If Nuri is twice, for making balance here 2 will multiply and solve. अभी देख पाओगे, ठीक है? अभी सॉल्व कर देते हैं. x plus 10 equal to 2y plus 20. तो x minus 2y equal to what will come? 2 minus 10.
So then x minus 2y equal to what will come? 10. It becomes the second equation. Now with the first and second equation, again same process by elimination method we will do. Okay, so let's write this equation. X minus 3y equal to minus 10. Here x minus 2y equal to this is positive 10 minus 10 and here positive 10. Correct? Check कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है. So now for solving this, what we'll do? X easily can be eliminated, but sign is same. The sign we have to make different. So when we have to make the sign different, then second equation में हम इसमें multiply -1 कर देते हैं as we have done in the last question, है ना? Then sign will be different. So x minus 3y equal to minus 10. Here minus x plus 2y equal to minus 10. Correct? Now it can be eliminated. X can be cancelled. है ना? If you will solve here, so what become? Minus y equal to minus 20. Y cancel, y equal to what? 20. And y means what? It's the age of sun. Now, how we can find the x value? This y value we can put anywhere. So we'll write here, put the value of y in which equation? किसी में भी कर देते हैं. First में कर दिया. The first equation says what? X minus 3y minus 10. So x minus 3y, y value 20 equal to minus 10. ठीक है? So x minus 60 equal to minus 10. So x equal to 60 minus 10. That become what? 50. So x equal to 50. X equal to 50 means Nuri age is 50 years and then Sonu age is 20 years. So we can mention here. We can mention therefore Nuri's present age. What will? 50 years. Right? And then Sonu's present age, that is 20 years. अभी चेक कर लेते हैं, है ना? How to check? With this condition only. बोल रहा है नूरी की एज में 5 माइनस कर दो, तो 50 में अपन ने माइनस किया, दैट बिकम व्हाट? 45. यहाँ रफली लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना? यहाँ रफली कर लेते हैं, हल्का सा एक रफ बॉक्स बना लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं. तो x minus 5 means 50 minus 5 what become? 45. हमने बैलेंस किया था 3 into, तो y minus 5, y means हो गया 20, 20 minus 5 किया 15, 15 3 या 45, 45 करेक्ट, करेक्ट बैलेंस्ड. सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं. बोल रहा है इसमें 10 ऐड कर दो, किसमें? नूरी में. तो 50 प्लस 10 व्हाट बिकम? 60. ठीक है? इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई किया हमने 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 करेंगे 30, 30 into 2 60, here also 60. It's equal. This equation balanced. Equation balanced, that means what? That means our answer is correct. है ना? So this way we can find the present age of these two persons, Nuri and Son. Okay. So always we assume x and y with the present ages, and then whatever condition is given there before 5 years ago or 10 years later, whatever is given there, we can frame the equation and then easily we can solve. This way it will become very easy question. Okay. So just note down that and then we will move for the next question. Okay, done. Now let's move for the next question. Next question is, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number. अभी देखो उसने क्या पूछा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो थोड़ा सा टर्म को ध्यान देना. उसने लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द नंबर, एक नंबर की बात कर रहा है और स्टार्टिंग में जो कंडीशन है वो दी डिजिट्स के साथ. अब हम यहाँ पहले तो ये देख लें डिजिट्स और नंबर में क्या फर्क है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर. तो बहुत इजी है. डिजिट्स हम सिंगल डिजिट लिखते हैं, लेकिन अब जैसे हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा और ऐसे करके अगर हम तक 9 तक जाते हैं तो दीज ऑल आर कॉल्ड व्हाट? डिजिट्स. ये सारे के सारे क्या है? डिजिट्स.
सिंगल सिंगल है, लेकिन जब हमें नंबर बनाना होता है तो 2 डिजिट्स को कंबाइन करते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इसको जब हम कंबाइन करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 93, तो 93 में 2 डिजिट्स हो गया 9 and 3, बट 93 is become completely a number. That's a basic difference between digits and number. अब क्वेश्चन में पूछा है 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, मतलब इसी टाइप के कोई नंबर की बात कर रहा है, 93, 45, 62 जो भी है, जिसमें 2 डिजिट्स है। अब एक चीज है, आपने कभी बचपन में पढ़ा है प्लेस वैल्यू, जैसे हम कभी डिजिट्स, मैं आपको ये कहूँ कि देखो जरा, एक 5 है और एक 6 है, 2 डिजिट्स है 5 और 6, इससे आप नंबर बनाओ, तो आप नंबर कैसे बना सकते हो? अब आप नंबर बनाओगे तो ये पहले आप उससे पूछोगे कि ये बताओ मुझे फर्स्ट, जैसे इस पे अगर अपन बात करें, दिस इज अ वंस प्लेस, दिस इज अ टेंस प्लेस, है ना, वंस और यूनिट प्लेस वी कैन से, दिस इज द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आप कर चुके हो, दिस इज द वंस प्लेस, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड, अगर ऐसा होता 456 तो वंस, टेंस, थाउजेंड, है ना, सॉरी वंस, टेंस, हंड्रेड एंड देन थाउजेंड, इज दिस वे प्लेस वैल्यू इज देयर। तो हम यहाँ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो वंस और टेंस आना है खाली। तो अगर 5 और 6 से कोई नंबर बनने वाला है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वंस प्लेस पर किसको रखना है और टेंस प्लेस पर किसको रखना है। मान लो मैं इसको वंस प्लेस पर रखूं और इसको टेंस प्लेस पर रखूं, तो नंबर व्हाट विल, नंबर इज 56। अगर मैं उल्टा कर दूं तो नंबर विल बी 65, नंबर विल बी 65। तो यहाँ बात ये है, हमें ये समझना है कि क्वेश्चन में पूछा तो नंबर है, लेकिन कंडीशन जो अप्लाई की वो डिजिट्स पे की, उसने डिजिट्स में कंडीशन लगाई, है ना। तो जरा ध्यान से देखेंगे डिजिट्स और नंबर का फर्क। कहा उसने कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कह रहा है 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका सम है 9, जिसका सम कितना 9। जैसे अभी एक नंबर अपन बात कर रहे थे 65 या 56, इसके 2 डिजिट, इनके डिजिट्स का सम, जैसे अभी यहाँ पर इनके डिजिट का हम सम करें दैट इज 11। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि एक नंबर है 2 डिजिट्स का जिसके डिजिट्स का सम 9 है। तो यहाँ में जो x और y एज्यूम करना है, दैट भी एज्यूम डिजिट्स होंगे। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट मींस जो फर्स्ट आएगा, एंड देन फिर टेंस, यूनिट डिजिट बी x एंड देन टेंस डिजिट बी y। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे मैंने कहा कि आप 2 नंबर ले लो, एक 6 ले लो और एक 5 ले लो, लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि इसको आपको यूनिट डिजिट पर रखना है और ये टेंस डिजिट पर हो गया। तब नंबर बनाना तो बहुत आसान। तो फिर हम नंबर कैसे बनाते हैं? नंबर ऐसे तो हम 56 लिख देते, लेकिन अगर उसको प्रॉपर बाइफरकेट करें तो कुछ ऐसे होता है कि यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 एंड टेंस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 100 होता तो 100 वाला डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब डिजिट मल्टीप्लाई बाय द प्लेस वैल्यू, डिजिट मल्टीप्लाई बाय द प्लेस वैल्यू, और सारे डिजिट्स की जब प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई ऐड करते हैं देन वी गेट द नंबर। तो 5 into 10 what will come 50, 6 into 1 6, तो इट बिकम 56। फाइनली 5 और 6 से इस तरह से नंबर बना। वही कहानी हमें यहाँ चलना है। अब हमारे पास यूनिट डिजिट आ गया x और टेंस डिजिट आया y, तो व्हाट विल बी द नंबर फाइनली? नंबर विल बी x में हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड y में व्हाट विल मल्टीप्लाई 10, सो इट बिकम 10y plus x, दिस इज द नंबर 10y plus x। ध्यान देना, these are the digits and this is the number finally 10y plus x, जैसे कि ये 56 या 65 जो भी नंबर आएगा। ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन, है ना। अब ये भी कंडीशन नहीं लगाई, हमने सिर्फ एज्यूम किया x और y यूनिट और डिजिट टेंस डिजिट एज्यूम किए। अगर x और y यूनिट और टेंस डिजिट है, हमने पहले डिसाइड कर लिया x विल बी ऑन यूनिट प्लेस एंड y विल बी ऑन टेंस प्लेस, तो नंबर विल बी 10y plus x। कंडीशन थी कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, माने इन दोनों डिजिट्स का सम व्हाट इज देयर, दैट इज 9। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी बन गया, दोनों डिजिट्स का सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, x plus y equal to 9, डिजिट्स का सम बोला ना इसलिए। अब कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अब डिजिट नहीं होगा नंबर, कह रहा है इस नंबर का अगर आप 9 टाइम्स कर दो, वो जो भी नंबर है उसमें 9 को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। कह रहा है अगर इसका आप 9 टाइम्स करते हो, 10y plus x जो नंबर है इसका 9 टाइम्स कर दो तो इसके रिवर्सिंग ऑर्डर के ट्वाइस के बराबर होता है, ऐसी कुछ कंडीशन समझ रहे हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस,
द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो अब हमें इसके रिवर्सिंग ऑर्डर की बात करना है। तो ये तो ओरिजिनल नंबर हुआ। यहाँ अपन अगर रिवर्सिंग नंबर की बात करें, ये रिवर्सिंग नंबर क्या हुआ, जैसे अपन बात कर रहे थे अभी 56, तो इसका रिवर्सिंग क्या हो जाएगा 65। 56 का जो रिवर्सिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 65, राइट। तो इस तरह से 10y प्लस एक्स का रिवर्सिंग क्या, वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये रिवर्सिंग नंबर हो गया, उल्टा कर दिया। मैंने जहां x था वहां y आ गया, जहां y था वहां x आ गया। जैसे 56 का अगर मैं रिवर्स करूं तो वो 65 आएगा, 25 का रिवर्स करें तो 52 आएगा। सेम वे 10y प्लस एक्स हमारा ओरिजिनल नंबर है, लेकिन इसको रिवर्स कर दें तो 10x प्लस वाई आएगा। तो उसने कहा था जो ओरिजिनल नंबर को 9 टाइम्स आप करो और रिवर्सिंग नंबर को, जो रिवर्सिंग नंबर माने 10x प्लस वाई, इसका ट्वाइस करें तो देन इट विल बी इक्वल। ऐसी कंडीशन में एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, ये ओरिजिनल नंबर 9 टाइम्स this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। twice the number, कौन सा नंबर, जो रिवर्सिंग द डिजिट्स करके आ रहा है, जो रिवर्स डिजिट्स को हमने रिवर्स किया फिर एक नया नंबर निकला, उस नंबर के ट्वाइस ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स के बराबर है। Got it? Now we will open this and then we will get the equation. So it becomes 90y plus 9x 20x plus 2y। ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना, एक्स एक्स वन साइड एंड दिस वाई वाई आल्सो, एक्स और वाई है, पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 9x माइनस 20x व्हाट विल कम बेटा, दैट इज 9 माइनस 11x, इधर आ रहा है ना, और ये हुआ आपका प्लस 88y इक्वल टू 0। देखो मेरा 90y में से 2 माइनस किया तो 88 हो गया, 9 में से 20 माइनस हो गया, दैट इज माइनस 11x। तो अब 11 वी कैन टेक कॉमन, सो व्हाट विल लेफ्ट माइनस x plus 8y equal to 0। 11 we can transfer here, so 0 upon 11 means 0 only, so it becomes finally minus x plus 8y equal to 0। this becomes the second equation। okay, first और second equation से फिर हम वही elimination method लगा दें and then we can find the value of x and y। ध्यान देना जो x और y आएगा वो आंसर नहीं है, क्योंकि x और y आएगा वो तो डिजिट्स होंगे। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज अ नंबर, यहाँ नंबर, फाइनली x और y का वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, then you get an answer or means number। तो इसको एलिमिनेट करते हैं पहले तो फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गया माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। तो अभी देखिए एलिमिनेशन तो इजीली हो रहा है, x और x सेम है, साइन भी डिफरेंट है, कर देते हैं कैंसिल। व्हाट लेफ्ट 9y इक्वल टू 9 प्लस 0 इज व्हाट 0, oh sorry 9, and y इक्वल टू व्हाट लेफ्ट 9 upon 9 means 1। तो y इक्वल टू 1 मीन्स हमारे को ये पता पड़ गया कि टेंस प्लेस पर क्या आने वाला है वो मालूम पड़ गया। तो x की वैल्यू भी निकालते हैं, y की वैल्यू भी कैन पुट हियर, दैट विल x प्लस 1 इक्वल टू 9। 1 को ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू व्हाट विल कम 8। माने हमें पता पड़ गया कि ये यूनिट डिजिट है वो x होने वाली है और टेंस डिजिट है वो 1 होने वाला है। ओके, तो फाइनली नंबर क्या हुआ, अब आप ऐसे ही देख सकते हो, सॉरी यूनिट डिजिट 8 होने वाला है और टेंस डिजिट 1 होने वाला है, तो नंबर क्या बन गया, नंबर बन गया 18। वैसे भी अगर x और y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो आप डायरेक्टली भी निकाल पाओगे। 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 प्लस 8 कितना हुआ 18। तो फाइनली नंबर इज व्हाट 18। ठीक है ना, वी कैन चेक ऑल्सो दिस आंसर। हाउ वी कैन चेक विद दीज टू कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। कह रहा था दोनों डिजिट्स का अगर हम एडिशन करें तो 9 आना चाहिए। देखो ये 1 प्लस 8 9 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन उसने कहा कि नंबर्स को आप 9 टाइम्स कर दो, 18 को 9 टाइम्स कर दो, ठीक है, और कह रहा है फिर इसको रिवर्स कर दो। तो 18 का रिवर्स क्या हो, 18 का रिवर्स इज 81 और 81 इंटू 2 कर दो बोल रहा है। तो 81 इंटू 2 मीन्स 162 और फिर ये जो 18 था 18 इंटू 9 करो, 18 इंटू 9 वो भी क्या आया 162। देखो दोनों इक्वल, दोनों ही 162 आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट आवर आंसर इज करेक्ट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। सो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन दिस, सो प्लीज नोट डाउन दैट।
Okay, so done. Should we move for the next? Okay, so we'll start the next question. I think this question is clear to you. It's a very important question. During practice session, we have to solve this type of other questions also. Okay. Okay. Now, let's move for the next question. That is fourth part of the question. It says that Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. मीना बैंक में गई और उसको 2000 रुपीज विड्रॉ करना था. ठीक है. बोल रहा है कि सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट्स ओनली. उसने कैशियर से जाके क्या बोला कि मुझे 2000 रुपए टोटल चाहिए, 2000 रुपीज, लेकिन आप जो मुझे नोट्स दोगे, मतलब जो डिनोमिनेशन होगा नोट्स का, टाइप होगी, वो 50 रुपीज के नोट्स देना और कुछ 100 रुपए के नोट देना. 50 और 100 रुपीज के नोट्स उसने डिमांड किया, लेकिन उसको टोटल अमाउंट कितना चाहिए था? अमाउंट चाहिए था 2000. फिर उसने बोला कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मैंने कुछ 50 के मिले होंगे उसको, कुछ 100 के मिले. दोनों की जो हम काउंटिंग करें, अमाउंट नहीं, सिर्फ काउंटिंग करेंगे 50 के कितना मिला, 100 का कितना मिला, तो दोनों की काउंटिंग 25 आ रही है, ऐसा बोल रहा है. 25 टोटल नोट्स है. ओके. फिर बोला फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 और रुपीज 100 शी रिसीव्ड. मैंने उसको, हमें ये बताना है कि उसको 50 रुपीज के कितने नोट्स मिले फाइनली और 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले, ये हमको नंबर सुनकर बताना है. तो जो बताना है वही हम एज्यूम कर लेते हैं. वी एज्यूम दैट लेट सी रिसीव्ड रुपीज 50 नोट्स एक्स एंड देन रुपीज 100 नोट्स वाई. देखिए हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम किया कि उसको 50 रुपीज के एक्स नोट मिल पा रहे थे और 100 रुपीज के वाई नोट मिले, मान लिया. उसने एक पहला कंडीशन बोला कि जो काउंटिंग में नोट्स थे टोटल, मैंने इस 50 रुपीज के अगर एक्स नोट रहे होंगे, 100 रुपीज के वाई नोट्स रहे होंगे, तो टोटल जो काउंटिंग है नोट्स की वो कितनी, बोला कि 20 टोटल नोट्स की जो काउंटिंग है वो 25 नोट्स. तो हम एक इक्वेशन ये बना सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25. देखिए ना, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि एक्स हमने क्या एज्यूम किया, एक्स हमने एज्यूम किया 50 रुपीज के नोट्स, वाई हमने क्या एज्यूम किया 100 रुपीज के नोट्स, है ना. तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ. अब एक चीज देखें जरा, अगर मेरे पास 50 रुपीज के x नोट्स हैं तो अमाउंट कितना बन गया उससे, जो अमाउंट बना वो अमाउंट 50x बन गया बेसिकली. अगर मैं यहाँ पर इससे बात करूं इस जर्नल से, तो जो अमाउंट बना वो बना 50x. मैं 50 के अगर x नोट है, जैसे 50 के अगर मेरे पास 4 नोट्स है, पूछा कितना अमाउंट, तो 50 इंटू 4 करना पड़ेगा, 200 रुपीज बन गया. 50 अगर 5 नोट्स है तो 50 इंटू 5 250 रुपीज बना. ऐसे मेरे पास 50 रुपीज के x नोट है, तो अमाउंट बना 50x. इधर अमाउंट मेरा 100 रुपीज से क्या बन गया, 100 रुपीज के मेरे पास y नोट, तो व्हाट अमाउंट विल वी गेट, दैट इज 100y. बहुत ही आसान है. तो अब एक और उसने कंडीशन दिया था कि जो टोटल अमाउंट उसने रिसीव करना है वो है 2000. तो जो अमाउंट वाला फिगर है, वी कैन राइट 50x प्लस 100y. दिस इज द अमाउंट बेसिकली, अमाउंट from 50 notes, amount from 100 rupees note, but total amount is 2000. Can we make this? Yes. 50 we can take common also, beta. That is x plus 2y equal to 200 or 2000. 2000 will transfer here. So x plus y equal to x plus 2y equal to what left? 5 4s and 40. It become cancel ना, check कर लो. 50 आ गया, 0 5 4 है ना. सो दिस में वी कैन फाइंड. सो ये मैं अभी कैंसिल नहीं करता, इसको ऐसे लेकर 2000, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना. तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, इट्स अ सेकंड इक्वेशन. नाउ फिर वही हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया. वी कैन डू द एलिमिनेशन एंड वी कैन फाइंड द प्रॉपर डिनोमिनेशन एंड आंसर्स. दैट इज x प्लस y इक्वल टू 25 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट बेटा, 40. Now which variable can be eliminate x? बहुत ही सिंपल दिख रहा है, but we have to multiply -1 because sign different करना पड़ेगा. तो बोला x plus y equal to 25 और यहाँ कर दे -x minus 2y equal to -40. It will cancel, what left? -y equal to -15. Correct? So y minus cancel, y equal to what left? 15.
y का value we can put anywhere. Here we'll put in the first equation only. So x plus 15 equal to 25. X equal to what? 25 minus 15. So x equal to what left? 10. X equal to 10 and then y equal to 15. चेक कर लेते हैं आंसर. देखो हमारे पास x equal to ये आया. मैंने हम ये कह रहे हैं कि अब उसके पास जो 50 रुपीस के नोट्स गए वो 10 गए. मतलब हम क्या कह पाएंगे? रुपीस 50 नोट्स. How many? 10. And rupees 100 notes, how many? 15. तो देखो चेक कर लो 15 प्लस 10. पहला कंडीशन के दोनों नोट्स का जो टोटल होगा 25 होगा. तो देखो दोनों नोट्स का सम करेंगे 10 प्लस 15 25 होगा. कह रहे हैं जो अमाउंट बन रहा है. अब एक बात बताइए 50 रुपीस के मेरे पास 10 नोट्स हैं तो व्हाट अमाउंट विल बी देयर? अमाउंट बन रहा है 500. अगर मेरे पास 15 नोट्स है 100 रुपीस के 15 नोट्स 100 रुपीस के 15 नोट्स तो व्हाट अमाउंट विल बी देयर? 1500. टोटल कितना हुआ? 2000 अमाउंट. सही है बिल्कुल. 2000 उसने अमाउंट बोला था. तो हम दोनों कंडीशंस पे अपन वेरीफाई कर पा रहे हैं. दोनों नोट्स का जो टाइप ऑफ वैरायटी नोट्स का सम है वो 25 है और अमाउंट कर रहे हैं तो 2000 है ना. दिस वे वी कैन चेक आवर आंसर आल्सो एट द सेम टाइम आफ्टर फाइंडिंग द आंसर. Okay, so these all questions are there. Now one question is left in this exercise. Just try to solve. Otherwise, in the next video we will learn that question. Also, we will see. We will discuss that. Thank you very much.